Hello friends, how are you? In our last class we started a topic that is organic evolution. Organic evolution, okay? And we discussed about it in our previous class. We also discussed about that organic evolution, what is the meaning of organic evolution and who give the concept of organic evolution. Let me rewind firstly about that. Organic evolution, that means development of organisms. Organic evolution means development of organisms. It may be possible that just only development, or it may be possible that the development of species. Particularly here we discuss about the development of species. Okay, the concept of organic evolution was given by Charles Darwin. The concept of organic evolution was given by Charles Darwin in his book. In his book, the name of the book is The Origin of Species. But it is the name of book which was written by Charles Darwin. In this book, he firstly discussed about the organic evolution. Okay, and we also discussed the definition of organic evolution, according to which the simply we can say that the gradual and continuous process of change. The gradual and continuous process of change. The gradual and continuous process of change leading to change in genes, environment, and develop new species. And develop new species to form new species is called organic evolution. एक कंटिन्यूस चेंज जिसके कारण से किसके कारण से आता है कि जीन्स के अंदर जो चेंजेस हैं, एक सिक्वल कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें जीन्स के कारण से चेंजेस, जीन्स और एनवायरनमेंट में चेंजेस के कारण से न्यू स्पीसीज जो डेवलप होती है उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. नाउ in today's class we will discuss about the process of organic evolution. We will discuss about process of organic evolution. Okay, before starting the process of organic evolution, one term, the one coin term that we discussed that we used in our previous class, that is homologous organs. Firstly we discuss about that homologous organs. Homologous organs, what the mean of homologous organs? The organs of different organisms, the organs of different organisms which have similar origin, which have similar origin and similar internal structure. Similar origin, they have similar origin मतलब बनावट, and internal structure. Similar origin and similar internal structure, but have different functions are called homologous organs. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले वो ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन यानी कि कहां पर डेवलप होते हैं, किस तरीके से डेवलप होते हैं, वो इंटरनल स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शंस अलग अलग हों, तो उन्हें क्या कहा जाता है? होमोलोगस ऑर्गन्स. क्या बोला जाएगा उन्हें? होमोलोगस ऑर्गन्स. गॉट इट? जैसे अपन बात करें, सिंपल सी बात करें, ह्यूमन बींग्स का फॉरहैंड, फॉरलिम्ब, ये जो, क्योंकि साइंस में लेग्स नहीं होते, वी आर टेट्रापॉड, हमारे 4 पैर हैं, टेट्रापॉड हैं. 4 लिम्स, इन्हें बोलते हैं 4 लिम्स, और नीचे वाले जो अपन बोलते हैं लेग्स. ओके, तो ह्यूमन बींग्स के 4 लिम्स,
या अगर और किसी मैमल में कंसिडर करें, जैसे लॉयन है उसको कंसिडर कर सकते हैं, या फिशेस के फिन्स, या विंग्स ऑफ बैट, या विंग्स ऑफ बर्ड्स। अगर अपन इन सभी को अगर अपन कंपेयर करें तो इन सब की इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसी है, ओरिजिन एक है, ओरिजिन एक है। यहाँ पर ये जो सॉकेट होता है यहां से ओरिजिनेटेड है, तो ओरिजिन प्लेस एक जगह पे आ गया। थोरोसिक जो है इसे बोलते हैं थोरोसिक, यहां से ये ओरिजिनेटेड है, तो सभी में एक साइड एक ही जगह से ओरिजिनेशन है। इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है। अगर जैसे अपन ह्यूमन बीइंग की बात करें तो यहाँ पर वन बोन, यहाँ पे टू बोन, फिर बाद में यहाँ पे टार्सल, मेटाटार्सल्स, ओके, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, टार्सल्स, मेटाटार्सल, और बाद में फिंगर बोन्स। ये हमारी जो स्ट्रक्चर है, अगर अपन किसी भी और के अंदर कंपैरिजन करें तो सिमिलर स्ट्रक्चर वहां पर उनके अंदर भी है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो सिंपल सी बात अपन बोल सकते हैं, दे हैव सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर, लेकिन इनमें फंक्शंस अलग अलग हैं। हमारे जैसे ये किसी चीज को पकड़ने के काम में आता है, किसी और मैमल में बात करें जैसे टाइगर है उसके अंदर रनिंग में यूज होता है, फिशेस के अंदर बात करें तो स्विमिंग में यूज है, और बर्ड्स या बैट के अंदर अपन बात करें तो वो उसकी फ्लाइट के अंदर यूज होता है। तो फंक्शंस अलग अलग हैं लेकिन ओरिजिन सबका एक है। गॉट इट? होमोलोगस ऑर्गन्स की प्रेजेंस, होमोलोगस ऑर्गन्स की प्रेजेंस ये शो करती है कि द ऑर्गेनिजम्स डेवलप्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कॉमन एंसेस्टर से डेवलप है, कॉमन एंसेस्टर से डेवलप होने। अगर कहीं पर भी होमोलोगस ऑर्गन्स की प्रेजेंस मिलती है तो उसका मतलब क्या है, वो जो स्पीसीज हैं वो स्पीसीज एक कॉमन एंसेस्टर्स के साथ या कॉमन एंसेस्टर से वो मैच करती है। सिंपल सी बात है। इफ वी एम कंपेयर प्रॉपर्टीज ऑफ माई सेल्फ विथ माई ब्रदर एंड इफ आई कंपेयर विथ यू, then definitely the properties will match more with my brother, because हमारे जो ancestors हैं वो जस्ट एक जनरेशन ऊपर यानी कि फादर मदर आ गई। आपसे कंपेयर करूं या एक अफ्रीकन से कंपेयर करूं तो मे बी पॉसिबल थाउजेंड्स जो जनरेशंस पीछे अपन चलें तो जो सबसे पहले जो एंसेस्टर्स जो इंडिया में आए थे हमारे, ओके, वहां पर जाकर अपन मैच हुए। अच्छा, एक अफ्रीकन से कंपैरिजन करूं और एक किसी मंकी से कंपैरिजन करूं तो डेफिनेटली अफ्रीकन से ज्यादा मैच है, क्योंकि अब मिलियन ईयर्स पहले जो हमारा जो सबसे कॉमनेस्ट एंसेस्टर था होमोसेपियंस यानी कि हमारा ह्यूमन बीइंग्स का, वहां पर जाकर अपन सिमिलर हो गए। अच्छा, मंकी से कंपेयर करूं और एक किसी फिश से कंपेयर करूं तो मंकी के साथ ज्यादा मैच करेंगे। अब देख, अच्छा अब ध्यान से समझना, जितना हम पीछे जाते जा रहे हैं एंसेस्टर्स में उतने ही कैरेक्टर्स कम मैच होना स्टार्ट हो गए। मेरे ब्रदर के से ज्यादा मैच कर रहे हैं क्योंकि एंसेस्टर्स जस्ट एक ही जनरेशन ऊपर है। लेकिन अगर मैं किसी मंकी से कंपेयर करूं तो वहां पर जो मैचिंग जो है वो काफी कम होगी कंपैरेटिवली टू माय ब्रदर, क्योंकि एंसेस्टर वहां उतना ही पीछे चला गया। लेकिन कॉमन कैरेक्टर्स का पाया जाना, कैरेक्टर्स में सिमिलरिटीज होना कॉमन एंसेस्टर्स की बात को प्रूव करता है। गॉट इट? तो यहां पर होमोलोगस ऑर्गन्स की प्रेजेंस ये इंडिकेट करती है, अगर किसी में भी है, जैसे अपन ने कल यूज किया था होमोलोगस ऑर्गन्स की प्रेजेंस जो है वो इवोल्यूशन के अंदर काफी यूजफुल थी, तो उसकी प्रेजेंस का यूज किया जाता है एंसेस्टर्स के साथ रिलेशंस बनाने में। ओके, नाउ अब अपन बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किस तरीके से होता है? तो यहां पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं इवोल्यूशन को समझाने के लिए। गॉट इट? जिसमें से जो सबसे पहली जो थ्योरी है दैट इज लैमार्किज्म। फर्स्ट थ्योरी इज लैमार्किज्म। गॉट इट? सेकंड थ्योरी आएगी अपने डार्विनिज्म।
तो अपन पहले लेमार्किज्म की बात कर लेते हैं। लेमार्किज्म की जो थ्योरी है, लेमार्क नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया और उन्होंने अपनी इस थ्योरी में जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है यानी कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज, उसको यूज और डिसयूज ऑफ सम ऑर्गन्स से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो यहां पर किसका यूज किया गया है? यूज एंड डिसयूज, यूज एंड डिसयूज, या एक और टर्म में बोला जा सकता है मोर एंड लेस यूज ऑफ ऑर्गन्स। तो किसी भी ऑर्गन की यूज, डिसयूज या यूज, मोर यूज और लेस यूज, इसकी बेसिस पर उन्होंने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। गॉट इट? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द चेंज इन स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन acquired during lifetime of an individual are inherited by offspring and keep adding over a period of time। मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन में, उसके स्ट्रक्चर में या उसकी फंक्शनिंग में जो चेंजेस हैं, वो चेंजेस वो अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर्ड करता है बाय यूज एंड डिसयूज। यूज और डिसयूज की बेसिस पर वो उसमें चेंजेस अपनी लाइफ में एक्वायर्ड करता है। जैसे किसी ऑर्गन का यूज ज्यादा कर रहा है तो उस कंडीशन में उस ऑर्गन या उसकी फंक्शनिंग ज्यादा डेवलप हुई, किसी का कम कर रहा है तो उसका लेस डेवलपमेंट हुआ। तो वो चेंजेस जो हैं यूज डिसयूज की बेसिस पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में गेन करता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? एंड इनहेरिटेड, और बाद में इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग एंड कीप एडिंग ओवर ए टाइम। और फिर जो न्यू ऑफस्प्रिंग है यानी कि उससे डेवलप होने वाला जो चाइल्ड है, उसको वो कैरेक्टर्स जो उसने अपनी लाइफ में एक्वायर्ड किए हैं वो ट्रांसफर करता है। गॉट इट? और इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती जाती है। क्लियर? मतलब सिंपल सी बात करें तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ए है, उसने जो कैरेक्टर अपने अंदर एक्वायर्ड किया वो किसको ट्रांसफर करेगा? बी को, यानी कि अपने चाइल्ड को। फिर बी जो है ये कैरेक्टर प्लस अपने खुद ने जो एक्वायर्ड किया है वो कैरेक्टर्स मिलाकर किसको ट्रांसफर करेगा? सी को। इस तरीके से ये कैरेक्टर्स जो है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक तो होते हैं एक्वायर्ड और एक होता है इनहेरिटेटेड। एक्वायर्ड यानी कि जो हम हमारी लाइफ में गेन करते हैं, इनहेरिटेटेड मींस जो डीएनए जीन्स वगैरह से हमें ऑब्टेन होते हैं। गॉट इट? अब जैसे हेयर स्ट्रक्चर है या बॉडी स्ट्रक्चर है, ये तो हमें इनहेरिटेटेड है। बाकी जो हमने हमारी मसल्स डेवलप की, नॉलेज जो गेन किया, वो सब क्या है? दैट आर एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो हमने हमारी लाइफ में अचीव किए हैं। तो यहां पर ये क्या बोलते हैं कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में गेन करता है और फिर उसे ट्रांसफर करता है। जो न्यू इंडिविजुअल है उसको यहां पर ये ट्रांसफर करता है। गॉट इट? और ये जो कैरेक्टर्स हैं जो ट्रांसफर हो रहे हैं, ये आगे चलकर न्यू स्पीसीज डेवलप करते हैं। क्या कर देते हैं? न्यू स्पीसीज डेवलप करते हैं। तो यहां पर डार्विन लेमार्क ने जो यूज और डिसयूज है उसको एक्वायर्ड कैरेक्टर मानते हुए उसकी बेसिस पर इवोल्यूशन को क्लियर किया। या सिंपल दूसरे लैंग्वेज में अपन बोले तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जिस ऑर्गन का ज्यादा यूज किया जाता है वो मोर डेवलप होता है और जिसका यूज कम किया जाता है वो लेस डेवलप होता है। और ये मोर और लेस डेवलप जो कैरेक्टर हैं एक्वायर्ड, वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होते हैं। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द यूज एंड disuse of an organ leads change in that organ and its functioning. These changes or variations can be passed or inherited from one generation to next generation. Okay? And leads to organic evolution. और फिर आगे चलकर वो क्या करते हैं? Organic evolution यानी कि न्यू स्पीसीज का डेवलपमेंट करते हैं। Got it?
इसका जो सपोर्ट में उन्होंने बात कही वो था 2 एग्जांपल्स जो उन्होंने डिस्कस किए थे। एक तो था स्नेक का डेवलपमेंट और सेकंड उन्होंने जो एग्जांपल लिया दैट इज जिराफ। इन दोनों के एग्जांपल्स का उन्होंने यूज किया। स्नेक के अंदर लेस यूज का कॉन्सेप्ट उन्होंने काम लिया और जिराफ के अंदर मोर यूज का कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज किया। गॉट इट? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, लेमार्क के अकॉर्डिंग या इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एंशिएंट लिजार्ड टाइप जो ऑर्गेनिज्म जो थे उस टाइम पर, उन्होंने अपने क्रोलिंग मोशन उन्होंने स्टार्ट किया। क्या कर दिया उन्होंने? क्रोलिंग मोशन स्टार्ट किया। क्रोलिंग मोशन का मतलब रैंकर चलना स्टार्ट किया। अब आदमी जब रैंकर चलेगा तो डेफिनेटली अपने जो लिम्स हैं यानी कि हाथ और पैर उनका यूज कम करेगा। तो दैट मीन्स उन्होंने लेस यूज ऑफ लेग्स का यूज करना कम कर दिया। फाइनली टाइम पासिंग के साथ साथ लेग्स का जो यूज है वो कम होने से जो लेग्स हैं उनका डेवलपमेंट कम हुआ और मॉडर्न जो स्नेक है जिसमें लेग्स नहीं होते वो डेवलप हुआ। तो यहां पर लेस यूज या जो अनयूज है उसके कारण से लिजार्ड टाइप के ऑर्गेनिज्म से स्नेक टाइप का ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ। गॉट इट? तो ये तो उन्होंने किसके बारे में बताया? लेस यूज या डिसयूज। सेकंड जो उन्होंने एग्जांपल काम में लिया वो लिया था उन्होंने जिराफ और डक्स का। बतख, डक में भी जिराफ से अपन कंसिडर करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जिराफ जो है ये एंशिएंट जो ज़ेब्रा टाइप यानी कि घोड़ा वगैरह अपन बोल सकते हैं जिसकी शॉर्ट नेक होती, या सिंपल बोले तो अपन शॉर्ट नेक जो ऑर्गेनिज्म थे जिराफ के जो प्रिमिटिव्स थे उन्होंने अपनी गर्दन का, नेक का मोर यूज किया, मोर यूज ऑफ नेक, गर्दन का ज्यादा यूज किया। अब इसके लिए एक थ्योरी बोली जाती है कि उस टाइम पर जो ग्रासेस थी वो कम हो गई थी, तो जो जिराफ जो था उसको अपनी गर्दन को ऊपर की साइड में खींचना पड़ता था ताकि वो प्लांट्स वगैरह की लीव्स को ईट कर सके। तो इसके कारण से उसने मोर यूज किया नेक्स का, जिसके रिजल्ट में उसकी नेक की लेंथ जो है वो इंक्रीज्ड हो गई, जिसके रिजल्ट में आज जो अपन जो जिराफ देखते हैं कौन से वाले, लॉन्ग नेक्ड, उनका डेवलपमेंट हुआ। गॉट इट? तो ये थी थ्योरी कौन सी? लेमार्किज्म। लेमार्किज्म की थ्योरी के दुनिया भर के ऑब्जेक्शंस हैं, जिसमें जो मेन ऑब्जेक्शंस हैं उनकी अपन बात करते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन है, डार्विनिज्म अपन कल ही डिस्कस कर पाएंगे नेक्स्ट क्लास में। विजमैन के एक्सपेरिमेंट्स, इन्होंने इस थ्योरी का सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन किया। इन्होंने जो लेमार्क की जो थ्योरी थी इसका सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन किया। विजमैन ने रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, चूहों के ऊपर। उन्होंने क्या किया, जो रैट है उस रैट के पैदा होते ही उसकी जो टेल थी, पूंछ जो थी, उसको काट दिया। अब बगैर पूंछ का रह गया, उसको आराम से ग्रो करने दिया। जब उसने रिप्रोडक्शन किया उस बगैर टेल वाले रैट ने, तो उससे जो न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा हुए उसकी भी उन्होंने पूंछें काट दी, फिर उनको ग्रो करने दिया। तो ये लगातार उन्होंने कंटिन्यूसली किया। अब थोड़ा सा एक बता दूं, अपन गवर्नमेंट बुक का फॉलो करेंगे तो गवर्नमेंट बुक के अकॉर्डिंग तो ये कहा गया है कि उन्होंने 10 जनरेशन तक ये परफॉर्म किया। लेकिन जो कुछ बुक्स हैं वो ये बोलती है कि इन्होंने कितना किया था, 26 जनरेशन तक। तो अपने को तो गवर्नमेंट वाला डाटा यूज करना है, तो अपने को ये ध्यान रखना है 10 जनरेशन तक उन्होंने इसको परफॉर्म किया। इसके बाद 10 जनरेशन के बाद जब उन्होंने जो न्यू मतलब जो 10 जनरेशन बाद जो डेवलप हुए जो रैट्स है
उनकी जब उन्होंने टेल की स्टडी की तो उन्होंने देखा कि उसकी टेल में पूंछ की लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ा है, यानी कि वो जो जहां से स्टार्ट किया था जितनी लेंथ थी उतनी ही लेंथ यहां पर रही। तो अगर अपन बात करें यूज और मिस यूज की, तो जब टेल थी ही नहीं रैट की तो वो यूज कहां से कर सकता है? तो मतलब उसमें एक्वायर्ड कैरेक्टर विदाउट टेल का होना चाहिए। तो अगर टेल का विदाउट टेल का एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है तो डेफिनेटली आफ्टर फ्यू जनरेशन अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म उसकी साइज कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दैट इज द ऑब्जेक्शन, मेन ऑब्जेक्शन ऑफ विजमैन। इसके अलावा टू मोर ऑब्जेक्शन जो जनरल ऑब्जेक्शन अपन कंसिडर करते हैं। इन इंडिया जो फीमेल चाइल्ड है, गर्ल्स जो हैं, उनमें नाक में और कान में रिंग्स पहनने के लिए छेद किए जाते हैं। दैट मीन्स इंडियन ट्रेडिशंस में होल होना, नाक में और कान में छोटे छोटे छेद होना एक यूजफुल कैरेक्टर है जो हम हमारी लाइफ में एक्वायर्ड कर रहे हैं। और ये प्रोसेस जो 1000 ईयर्स से चलती आ रही है, लेकिन आज तक कोई भी एक ऐसी बच्ची पैदा नहीं हुई जिसके नेक में या ईयर्स में पहले से ही होल हो। तो मोर यूज वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की बात करें, शेविंग। इट इज टोटली यूजलेस फॉर अस। हेयर्स और शेविंग्स, they are totally useless, there is no use, that means they should be disused। 1000 ईयर से आ रही है। अगर लेमार्किज्म की बात करें तो हमारे जब ये कोई यूज की नहीं है तो वो गायब हो जानी चाहिए थी, जैसे स्नेक में लेग्स गायब हुए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो है, ये कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो लेमार्की थ्योरी का अपोज करते हैं। व्हाट इट अबाउट द डार्विनिज्म वी विल डिस्कस इन next class।